کہ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. ویری ویری سمپل. اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا اس میں. یہ وہ دعا ہے کہ جو اپنے خنوت میں اور بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا، یہ دعا مسلسل پڑھتے رہنا. ایون چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں. اس میں خالق کائنات رب العالمین ایک ایسے لمحے کو یاد دلا رہا. پلیز غور سے سننا. اللہ کانشیس کو ہلا رہا کہ تمہارے ہر وقت 24 گھنٹے تم کو یہ یاد رہنا. کیا یاد رہنا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے کریم پروردگار، اے رب العالمین، اے رب المشرقین والمغربین، اللہ تو میرے والدین پہ رحم کر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر کیا. کبھی یاد ہے؟ کبھی یاد آتا ہے یہ بات؟ یہ یوتھ کے لیے بہت بڑا میسیج ہے. جو بھی سن رہا ہے اس وقت مجھے، کہ ماں باپ زندہ رہے تو یہ مت سمجھو کہ ماں باپ تمہارے لیے کوئی برڈن ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بار بار یہ کہو، بار بار یہ کہو، رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر دے، رحم کر، ایسے رحم کر کریم جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم. کچھ یاد ہے کہ بچپنے میں کیسے رحم کیا تھا اس نے؟ ماں باپ نے کیسے رحم کیا تھا؟ کیسے رحم کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا؟ کوئی ہماری میموری نہیں ہے. 1% بھی ہماری میموری نہیں. کیوں؟ جب بچہ دنیا میں آتا، جب ہم دنیا میں آئے تھے، نیو بورن بیبی تھے، چند لمحوں کے تھے، فیو سیکنڈز کے تھے، فیو آورز کے تھے، فیو ڈیز کے تھے. کچھ یاد ہے؟ 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد آپ کی میموری شروع ہوتی، یادداشت آتی کہ اچھا 4 سال پہلے میں نے اسکول میں یہ کیا تھا، وہ بھی ہلکا ہلکا یاد آتا. لیکن یہ 3-4 سال کہ جو سب سے زیادہ کروشل تھے میرے، ایسے کروشل تھے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرے یہ جو بونس ہے نا، یہ جو میرے ہاتھ کی ہڈیاں ہیں نا، یہ اتنی سافٹ تھی. میرے پیر میں طاقت نہیں تھی. میری گردن جو نیک ہے نا، وہ بھی ایک جگہ نہیں تھا، ہل رہا تھا. وہ میری ماں تھی، ماں تھی، ماں تھی، ماں تھی، جس کی آج 2nd برسی. اس نے، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس دونوں مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ماں نے اتنی سافٹلی، اتنے آرام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ مجھے اٹھایا، اور مہینوں 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 اتنی سافٹلی کہ کہیں میرے بیٹے کا نیک ٹیڑھا نہ ہو جائے. آپ انصاف سے بولو، اگر جھٹکے سے اٹھاتی، اگر بالکل کیجول اٹھاتی، ہاتھ پھسل جاتا، سلپ ہو جاتا، تو ہمارا کیا شر ہے؟ 3 مہینے 4 مہینے تک جب تک یہ نیک، یہ گردن تمہاری ٹھہرتی نہیں، ماں کتنی احتیاط کرتی. رات میں اپنے بازو پہلو میں لے کے سوتی ہے کہ کہیں میرا بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے. دن بھر کی تھکی ہوئی ماں، پلیز غور سے سنو، دن بھر تھکی ہوئی ماں ہر 2 گھنٹے کے بعد رات میں جب وہ سوری ماں، ایوری 2 hours 3 hours 4 hours وہ تم کو فیڈ کرتی. تم تو اٹھتے، روتے، ہم روتے، چیخیں مارتے. وہ اس وقت اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ بیٹا، لیٹ می سلیپ. یہ بولتی ماں میں تھکی بھی ہوں، لیکن رات میں بھی تم کو فیڈ کرتی ہے، رات کے حصے میں بھی فیڈ کرتی ہے، اندھیرے میں فیڈ کرتی ہے. سارا گھر سو رہا، پورے سو رہے، آرام کر رہے، سب ساؤنڈ سلیپ سو رہے، سب ریلیکس ہیں، لیکن ماں ریلیکس نہیں رہتی. اللہ اس لمحے کو یاد دلا رہا کہ سنو، تم اب یاد رکھو کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. اگر ہم کو وہ یہ میموریز ذہن میں آ جائے نا، پلیز غور سے سنو، اگر یہ میموریز یہ ہماری ذہن میں آ جائے نا، تو میں ایک ماں کو کبھی جواب نہیں دے سکتا. میں اپنی بوڑھی ماں کو کبھی برڈن نہیں سمجھ سکتا. میری بوڑھی ماں کو میں کبھی اپنا برڈن نہیں سمجھوں گا. میں اپنی ماں کو لے کے جا کے اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھوں گا. جو اولڈ ہاؤسز رہتے ہیں نا، جہاں پہ پوری ہر وجہ کی فیملیز آ کے رہ جائے، بوڑھے ماں باپ کو جہاں لا کے چھوڑا ہے نا اپنے UK میں،
पूरी दुनिया की बात कर रहा है, इवन इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, सब कॉन्टिनेंट में भी ये प्रॉब्लम है। अब कब तक देखेंगे? हम किसी के प्रेशर में आ जाते, आके बोलते मैं नहीं देख सकते, आई कांट सी योर मदर। आप क्या करते? वो लेके जाके ओल्ड हाउस जो है ना, पैसे देते, यू पे एंड यू पुट देम ओवर देयर। कभी सोचा मेरे साथ हुआ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मौलाना मेरी माँ मुझे बहुत सता रही। कैन यू इमेजिन कि बेटा और बेटी बोल रहे हैं कि माँ मुझे बहुत सता रही। कैन यू इमेजिन? मैंने कहा तुम्हारी जबान पे ये जुमला कैसे आया कि सता रही है? ये वर्ड कैसे इस्तेमाल किया तुमने माँ के लिए कि मेरी माँ मुझे बहुत सता रही, शी इज ओल्ड, शी डोंट लिसन। बचपने में मैं सुनता था, माँ बोलती थी बेटा प्लीज डोंट डू इट, मैं सुनता था, मैं कभी नहीं सुनता था। माँ उसके बाद भी माँ ये नहीं बोलती थी मेरे बेटे तू सता रहा, मैं तुझे लेके जाके कहीं और छोड़ दूंगी। नहीं, कलेजे से लगा के रखते। कलेजे। आज जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स है ना, आज जो हमारे इबादतें कबूल नहीं हो रही, एक चीज जिंदगी में याद रखो, सारी इबादतें एक तरफ है, एक साइड पे सारी इबादतें। तुम रात भर सजदे कर रहे, मिसाल की तौर पर, अल्लाह करे ना नसीब कर, कसरत से तुम इबादतें कर रहे, नमाजें पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, सब एक साइड पे, इताअत वालिदैन एक साइड पे। ये सारी इबादत करने के बाद अगर तुमने ये कहा कि नहीं मैं अपने माँ बाप को आई कांट केयर, आई डोंट वांट टू टेक द केयर ऑफ माय मदर, वो बूढ़ी हो गई, मैं लेके जाके वहां छोड़ दूंगा। अगर तुम ये समझो, तुम माँ को जवाब दे दो, सिर्फ जवाब दे दो, आंसर बैक करो, तुम्हारी सारे सजदे मुंह पे फेंक दी जाएंगी, सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी। ये मत बोलो कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर मदर, वी आर डूइंग समथिंग फॉर माय फादर। नो, ओबीडियंट रहना। अब मेरे जुमले गौर से, जो माँ बाप का ओबीडियंट नहीं होता वो इमाम का भी ओबीडियंट नहीं होता, वो अल्लाह का ओबीडियंट भी नहीं होता। पहले माँ बाप की इताअत करो, फिर इमाम की इताअत करो। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सुनने वालों को, अंदाजा नहीं है तुमको कि इसका सवाब मेरा मौला तुम्हारे वालिदैन को क्या देगा। आज तुम्हारी माँ की बरसी है ना, तुमको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे वालिदैन की, तुम्हारी माँ के दर्जात कैसे बुलंद करेगा, गैर हिसाब अता करता। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी नीचे लहद के अंदर, तुम्हारा डैड तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि ओ माय सन, ओ माय डॉटर, मेरे लिए कुछ भेज दे, तोहफा, कोई गिफ्ट भेज दे। आप क्या भेजेंगे गिफ्ट? जमीन के ऊपर से क्या भेज सकते हैं? हमने इस ग्रेव को बंद कर दिया है, हमारी माँ बाप की ग्रेव बंद है, हम कुछ भेज नहीं सकते, कुछ नहीं भेज सकते। ये ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा गिफ्ट है जो तुमने अपने माँ बाप को दिया है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जो तुमने अपने वालिदैन को अता किया है। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा? आज आपको अंदाजा नहीं है कि आपके वालिदैन किस तरह तुम्हारे हक में, वो औलाद जो आज ये ईसा अलैहिस्सलाम की मजलिस करा रहे, वो औलाद तुम्हारे हक में कितना दुआ देगी, औलाद को कितनी दुआएं मिलेगी। आज इस फैमिली को कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स की मजलिस करवाई है, कितना तुमको इसका अजर अजीम मिलेगा, आप बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता 1 साल तक तुम्हारा रिस्क अल्लाह खोल दे, हो सकता अब तक जो तुम्हारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है वो तुमने आज अपने माँ बाप की खिदमत की कि जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे रास्तों के कैसे खोल देगा। इसलिए कि जब माँ के पास पहुंचेगा आज का ये गिफ्ट, आज के ईसा अलैहिस्सलाम जब माँ की लहद में पहुंचेगा, आज की ये ईसा अलैहिस्सलाम जब बाप की लहद में पहुंचेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? वो पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज मजलिस की हजारों लोगों ने फातिहा पढ़ी, 2 आंसू निकले, बीवी की बारगाह में कबूल हुई, अल्लाह फौरन कुन फैकुन का मामला है। रहमत को नाजिल करते हुए अल्लाह देरी नहीं करता, याद रखो, कभी देरी नहीं करता। रहमत को नाजिल करते हुए कभी देरी, तुमने नियत की, अल्लाह तुमको अजर दे देगा। वो इतना करीम है, इतना मर्सीफुल है कि उससे बड़ा मर्सीफुल तो कोई है ही नहीं, उससे बड़ा करीम तो कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज से दिस, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो की तस्बीह पढ़ो, या रहमानों की तस्बीह पढ़ो, या करीमो, या करीमो, या रहमानो, या रहमानो।
अपने मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करवाने की कोशिश करो। जितना हो सके तुम दुआ करो कि अल्लाह मेरे मरहूमीन, मेरे माँ के, मेरे बाप के दर्जात को बुलंद फरमा। उसका अजर देखो अल्लाह तुमको क्या देगा। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि परवरदिगार तुमको इसका अजर क्या देगा। बेहतरीन चांस है, बेहतरीन मौका है रजब के महीने में अपने वालिदैन के दर्जात को बुलंद कराने का। जैसे ये दुआ कर रहे ना, इस महीने में इस्तिग़फ़ार का बहुत सवाब है, बेइंतहा सवाब। आप इंग्लिश में बोले, लंदन में है ना, आप इंग्लिश में बोले, अल्लाह को बोलो आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह। जबान पे बार बार ये जुमले रहना कि अल्लाह तुम मुझे माफ, एटलीस्ट 100 टाइम्स इन ए डे, 1000 टाइम पढ़ो। आज ही मैं एक अमल देख रहा था, 1000 मरतबा। आज इस साल सवाब की बंदिश का मेरा दूसरा तोहफा, दूसरा गिफ्ट, 1000 टाइम अगर कोई कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट ओनली वन। सिर्फ इतना बोलना है, ला, इंग्लिश में नहीं बोलना, उर्दू में बोलना, अरबी में बोलना। अगर 1000 मरतबा की, अगर 10 तस्वीर तुम निकालो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, इसका अजर क्या है मन? तुमने 1000 मरतबा पढ़ा, अल्लाह इसका 1,100,000 टाइम इसको जो है इसका अजर तुमको देता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन, यू कांट बिलीव कि उसकी रहमत का कैसे नुज़ुल। आप क्या समझ रहे, हम क्या समझ रहे? ये वही रहमत है दोस्तों कि अगर तुमको ये रहमत मिल जाए, एक टोटल ब्लेसिंग अगर आप चाहते हैं तो इस महीने में ले लो। तो आप कोशिश करो 1000 टाइम ला इलाहा, कभी भी पढ़ो, एनी टाइम इन ए डे, एनी टाइम इन ए डे से 1000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले सलवात पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम, 5 मरतबा सलवात पढ़ के ये अल्लाह का कर, इतना ही पढ़ो ला इलाहा। और उसके अब सुनो, पढ़ने के बाद आपने 1000 टाइम कंप्लीट कर लिया, कितनी देर होगी? हार्डली 15 मिनट, हार्डली 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। मैं सिर्फ 20 मिनट बोल रहा हूं आपसे। 20 मिनट्स अगर तुमने स्पेयर किया और पढ़ने के बाद तुम ये हाथों को उठा के दुआ दो, जिस जगह हाथ में ले लो, जल्दी दुआ कबूल होगी। हाथों को उठा के बोलो परवरदिगार इसका सवाब तो मेरी माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिकॉज आज अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा तो मेरी माँ की वजह से बोल रहा, मेरे बाप की वजह से। आप क्या समझ रहे हैं? अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतहु बिला फसल बोल रहा तो मेरे माँ बाप की वजह से। आज अगर मेरे दिलों में विलायत अमीर अल मोमिनीन आई है, अगर दिलों में मेरी अली की मोहब्बत आई है कि मैं अपनी ज़बान पे अली अली करता हूँ, अगर मैं आज़ादारी हुसैन करता हूँ तो किसकी वजह से करता हूँ? इस माँ बाप की वजह से करता हूँ। अल्लाह रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, अल्लाह तो रहम कर हमारे माँ बाप पे जैसे उन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया। 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सोचो इसका सवाब 100,000, जैसे तुमने 100,000 दफा पढ़ाई है, अल्लाह इतना रिवॉर्ड देगा, इतना रिवॉर्ड देगा। आप सोचो इसका रहमत क्या है, कितना करम हो जाएगा परवरदिगार का। अगर तुम 1,00,000 मरतबा अगर मेरे अकाउंट में आ जाए तो नीचे ग्रेफ के अंदर, नीचे लहद के अंदर जो सबसे ज्यादा अजर मिलेगा, नीचे लहद के अंदर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इतनी छोटी सी जगह है, इतनी नैरो प्लेस है, इतनी अंधेरी जगह है, इतनी वहशत है वहाँ जिसकी हम 2 रकत नमाज पढ़ते, नमाज वहशत है खबर पढ़ते। 2 रकत हम जो पहली रात की नमाज पढ़ते, एक अलम, एक आयतल कुर्सी और एक अलम 10 इन्ना ज़ल्ला की, वो 2 रकत नमाज वहशत को दूर करने के लिए पढ़ी जाती। उसी तरह अगर तुम आप वहशत को दूर करना चाहते हैं, आज 2 साल हो गए तुम्हारी माँ को मर के, डजंट मैटर, आज तुम अपनी माँ को वो गोल्डन गिफ्ट दो रजब का, वो गोल्डन गिफ्ट दो रजब का। ये बोल के दो कि परवरदिगार ये जो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है इसका अजर मेरे माँ बाप को। अब वो इतना करीम है कि सिर्फ तुम माँ बाप नहीं, तुम ये भी बोल सकते तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, एंटायर शिया कम्युनिटी, एंटायर मोमिनीन ये भी बोल सकते हैं कि अल्लाह के रसूल मौला के ज़माने से लेके आज तक जितने मरहूमीन मौला अली के चाहने वाले दुनिया से गुजर गए
उन सबको इसका सवाब दे दे। आप सिर्फ कर में परवरदिगार का अंदाजा लगाओ। वो ये नहीं बोल रहा कि तुम एक के लिए पढ़ रहे तो एक का ही सवाब दूंगा, नहीं। अगर ये बोल देता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ये बोल रहा कि तुम जितना चाहे, जितने लोगों के नाम लेना चाहते लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए कि दोस्तों, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। ये अब जहन में मत रखो कि वो 1 को देगा, 2 को देगा, 3 को देगा, 4 को देगा, उसके खजाने में कमी होगी। जितना दे सकता है वो इतना करीम है, देने से उसके पास कमी नहीं होती। वो हम हैं कि देने के बारे सोचते, लेकिन अल्लाह ये बोल रहा है कि अगर तुम भी देते रहोगे मैं तुम्हारे खजाने को भी बढ़ा दूंगा। देखे तो देखो, किसी गरीब को देख के तो देखो। अल्लाह कहता तुम्हारा खजाना भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी प्लस 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 कर दूंगा। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे अकाउंट में से माइनस होगा? नो 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 नो। व्हेन यू डू द चैरिटी, जब तुम किसी गरीब को देते, जब तुम किसी यतीम को देते, जब तुम किसी मिस्किन को देते, जब तुम किसी पुअर को देते, वो भी रजब का महीना, तो अल्लाह तुम्हारी उसको कम नहीं करता। ये मत समझो कि अकाउंट माइनस हो रहा है। वो अफसोस है, हम समझ रहे अपने ज़हन नाखिस में कि मेरा अकाउंट माइनस हो जाएगा इफ आई पे 100 पाउंड। एक मजलिस स्पॉन्सर करने के लिए हम 1000 मरतबा सोचते। अहले बैत चैनल पे जो थर्सडे की ईसारे सवाब की मजलिस है, उसमें मैं 1000 मरतबा, आई थिंक 100 टाइम्स, क्यों आई हैव टू पे 72 पाउंड्स, मेरा 72 पॉइंट्स माइनस हो जाएगा। बाबा यू आर लकी, इफ यू आर पेइंग यू आर लकी। अल्लाह 72 के 72,000 दे सकता, उसके खजाने में कमी है? मौला हुसैन के खजाने में कमी है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 टाइम पढ़ो, 1000 टाइम। और रजब के महीने के ये मखसूस अमाल में ये अमल बताया गया कि 1000 टाइम तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, और उसके बाद हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह, प्लीज मेरे जुमले पढ़ सो, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद, बेहक शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम, बेहक शोदाए करबला असीरान करबला। अल्लाह ये मेरे छोटे से अमल को कबूल कर ले, अल्लाह छोटे से अमल को कबूल कर ले। बस आपको पता है कि जब इस्लाम आया था तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान क्या किया था? क्या नारा था अल्लाह के रसूल का? क्या स्लोगन था? हाउ ही स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम। क्या बोला था उन्होंने मक्के की गलियों में? खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ये कलमा है। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट मजलिस है, इस तरह से गौर से सुनो। ये इतना बड़ा कलमा है कि मक्के की गलियों में अल्लाह के रसूल ने ये नारा बुलंद किया था। पहली मर्तबा अपने घर से दावत ज़ुल-अशीरा के बाद बाहर निकले। जब बाहर निकले सरकार तो यही कहते जाते थे, बिस्मिल्लाह खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, और कुछ नहीं कहते थे। कहो अल्लाह एक है तुम फला पा जाओगे। मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा। इस्लाम का पहला स्लोगन ही ये था, इस्लाम का पहला नारा ये था, अल्लाह की रसूल की वो पाक और पाकीज़ा ज़बान से यही निकला था, खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह एक है तुम फला पा जाओगे। फला मतलब क्या? तुम्हारी हर चीज माफ करके अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, तुमको जन्नत में लेकर चले जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझ रहे मेरी बात? ये इतना बड़ा है। अगर आज आपको मैंने वो गोल्डन गिफ्ट दिया ये मरहूमीन की मजलिस में, कोशिश करो कि यू स्टार्ट रिसाइटिंग फ्रॉम टुडे, टुनाइट, आज रात में आप पढ़ के अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार प्लीज लुक एट मी, ये बोलो परवरदिगार इसका सवाब बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे करीम इसका सवाब तो मेरी मरहूम माँ को दे दे, बाप को दे दे, भाई को दे दे, बहन को दे दे, मेरे अहले खानदान को और जमी मोमिनीन मोमिनात को दे दे। आपको अंदाजा नहीं कि अब मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने कहा मेरी एंटायर कम्युनिटी मौला के ज़माने से लेकर आज तक, वी डोंट नो कि कितने लोग मर गए। चलो 1 मिलियन बोलता मैं, 1 मिलियन की ग्रेव में 1 मिलियन 1400 साल से 1000 साल 1200 साल, इतने जमाने से उनकी हड्डियां भी नहीं होंगी लेकिन रूह तो है। वादी सलाम में
ان کے پاس جب یہ تحفہ پہنچے گا، فرشتے نور کا تشت لے کر جاتے، نور کا تشت لے کر جاتے نیچے لہر میں، لے کے جا کے اس کو دیتے۔ تو مرحوم جانتا نہیں پہچانتا، مثال کے طور پہ 100 سال پرانے، جانتے نہیں پہچانتے نہیں، وہ پوچھتا یہ کہاں سے آیا، اتنی رحمت اللہ نے کیوں بھیجی، اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی بلیسنگ، اتنی بڑی رحمت کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی، یہ کیوں بھیجی اللہ نے؟ تو فرشتے بولتے ہیں، مثال دے رہا میں، مثال ہے کہ لندن میں فلاں فیملی نے، اس لڑکی نے، اس لڑکے نے 1000 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کے، صلوات پڑھ کے، میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا، یہ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ نے، اور تمہارے حق میں تم کو یہ تحفہ بھیجا۔ دوستو وہ 1 ملین لوگ جب ان کے پاس راحت پہنچتی، اور آپ یو کے میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو کینڈی بھی دے تو ہم فوراً تھینک یو بولتے ہیں ہم بچوں، یہ اسلام بتا رہا، یہ اسلام کا طریقہ بہت اچھا طریقہ، وہ یو کے بچے فوراً تھینک یو بولتے ہیں، یہ طریقہ اسلام کا بہترین عمل ہے۔ تو وہ سارے کے سارے، میں مثال دے رہا، 1 ملین لوگ، یہ اگزامپل ہے، 1 ملین لوگ آپ کو دیکھیں گے لندن میں، اب جس محلے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس کاؤنٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کے گھر پہ ان مرحومین کی نگاہ پڑے گی جہاں تم نے بیٹھ کے یہ دعا کی، یہ کرم ہے پروردگار، وہ لوگ دعا دیں گے کہ اچھا یہ مومن نے کیا، وہ نیچے سے لحد سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں گے، پر آپ سوچو 1 ملین، میں مثال دے رہا 1 ملین کی، 1 ملین ہاتھ، 1 ملین ہاتھ تمہارے لیے بلند ہوں گے، اللہ 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 اللہ، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، 1 ملین ہاتھ تمہارے لیے بلند ہوں گے، اور بلند ہو کے وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار اس بندے نے، یہ محب آل محمد نے، یہ میرے مولا کے چاہنے والے نے ہم کو یہ تحفہ دیا، ہمارے اوپر رحمت کا نازل کروائی، اب تو اس پہ رحمت